I will revise the adjustments, important adjustments. First, closing stock, trading account credit side, and right, adding asset. Closing stock is taken at cost price or net realizable value, whichever is lower, and it is credited to trading account and it is added in the assets. Then expenses के दो, outstanding expenses and prepaid expenses. Outstanding expenses are the expenses incurred but not paid. Incurred हुए but paid नहीं हुए. They are expenses which are payable. Therefore, add in expense, add in liability. If it is a direct expense, हम trading debit में add करेंगे. Indirect expense रहेगा तो P&L debit में add करेंगे. And being payable, being a liability, हम liability में add करेंगे. Then, उसके बाद prepaid expenses. Prepaid expenses में, right? They are the expenses which are paid in advance. You are paid for the future. Those expenses do not pertain to the current year. They pertain to the future years. And therefore, we have to remove them from the expense and we have to transfer them to asset. So my adjustments are, right, minus from expense, add in asset. If it is a direct expense related, then trading डेबिट से माइनस करेंगे और असेट में ऐड करेंगे. अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रिलेटेड है तो हम P&L डेबिट से माइनस करके असेट में ऐड करेंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट, इनकम के दो एडजस्टमेंट्स. आउटस्टैंडिंग इनकम, दैट इज इनकम रिसीवेबल, एंड इनकम रिसीव्ड एडवांस और प्री रिसीव्ड इनकम. Outstanding income, income receivable, the income which has been accrued. Income has earned but not received. You are earned like credit sale. You have sold the goods, it's your income, but you have not received the money. So you add in sales and you add in debtors. बराबर ना? To that extent, income will increase and asset will increase. On similar basis, many times you have given loan to someone else. You have invested money, right? On that, you have earned the interest. You are entitled to receive the interest. Then that interest earned, income earned is your income, but it is not reflected in the cash or bank account because it is not yet received. It is receivable. So it is income which is earned but not received. So income है इसलिए we will add it in income, and being receivable we will add in asset. So add in income, add in asset, outstanding income और income receivable. दूसरा होता है प्री रिसीव्ड इनकम, और जिसको हम बोलते हैं राइट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. Actually, it is the income pertaining to the future years, right, which is received in advance in the current year. Many times when we provide the services, when we sell the goods, we take money in advance from the customers, like 40% advance, 50% advance for the work to be done. The work is not yet complete. Services are not yet rendered. Goods are not yet sold. But still we have received the money in advance. Anything received in advance is not an income, but it's actually liability, because we are liable to provide the services, we are liable to sell the goods. समझ में आ रहा है? So we have not earned it, still we received. Outstanding income में मैंने बोला था earned but not received. Pre received में बोल रहा हूँ not earned, still received. It's not your income, actually it's liability. Therefore we deduct it from income and we will add in liability. Remove from income and add in liability. Next, that will become income when you complete the services, when you sell the goods, when you provide the services. जब ये होगा in the next accounting year, that income will be that liability will be transferred to income. जब ये काम हो जाएगा या पीरियड खत्म हो जाएगा, at that point of time, आज जो हम liability बोल रहे हैं कल उसको income बोलेंगे. Next, so हमने क्लोजिंग स्टॉक देखा, एक्सपेंसेस के दो, इनकम के दो. देन अनरिकॉर्डेड सेल्स. Unrecorded sales, we assume it is a credit sale. Reason is very simple. If it is a cash sale, then your cash will not tally.
कैश एज पर कैश बुक एंड फिजिकल कैश विल नॉट टैली. देखो कैश का भी रिकंसिलेशन होता है. जो हमारे कैश बुक कैश कॉलम में है, जो बैलेंस है, दैट शुड मैच विथ द फिजिकल कैश इन योर ड्रॉवर. समझ में आ रहा है? इफ इट इज अ कैश सेल but you are not recorded, but you received the cash, in that case physical cash will be more than the cash book cash. आपके ड्रॉवर में पैसे ज्यादा रहेंगे than the balance that is shown in your cash book. Are you getting my point? And therefore we assume that it is not the cash transaction. अगर वो cash sale होता and omitted to be recorded, it could be easily identified. वो तभी rectify किया जाता. However, in this example or in this case, we assume it is a credit sale, which is not that easy to trace. Then, agar it is a credit sale, we have sold the goods, we have dispatched the goods. Goods are not in my inventory, therefore do not touch the closing stock. Closing stock touch करने की कोई जरूरत नहीं. Closing stock is correct. हमने goods dispatch किए, but record करना भूल गए in financial books. So हमें sales की entry डालनी है. Sales की entry होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. क्या एंट्री होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? डेटर में ऐड किया जाएगा, डेटर को डेबिट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, एंड सेल्स क्रेडिट हो रहा है, इनकम क्रेडिट हो रही है, इनकम ऐड कर रहे हो. सो ऐड इन डेटर, ऐड इन सेल्स. Similar basis, there can be unrecorded purchases. We assume that it is credit purchases. We have received the goods, but omitted to be recorded in the financial books. हमने उन रिसीव किए गुड्स, हमारे पास गुड्स आए हैं, हमारे गोडाउन में है, और हमने उसको क्लोजिंग स्टॉक में भी लिया है. सो क्लोजिंग स्टॉक इज करेक्ट टू दैट एक्सटेंट, बट हमने उसको एंट्री डालना भूल गए. परचेसेस की, क्रेडिट परचेस की एंट्री जो होती है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट. परचेसेस अकाउंट डेबिट मींस ऐड इन परचेसेस, एक्सपेंसेस को डेबिट कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, ऐड इन परचेसेस. एंड दूसरा मैंने बोला, राइट, क्रेडिटर्स को क्रेडिट मींस लाइबिलिटी को क्रेडिट कर रहे हो. यू आर इंक्रीजिंग द लाइबिलिटी, यू आर इंक्रीजिंग द क्रेडिटर्स, देयरफॉर इट इज ऐड इन परचेस, ऐड इन क्रेडिटर्स. अनरिकॉर्डेड सेल्स हो गया, अनरिकॉर्डेड परचेस हो गया. देन देयर आर एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू आउटफ्लो ऑफ द गुड्स. आउटफ्लो अदर देन सेल्स. Outflow of the goods should be credited to trading account. One option is to be debited from purchases, but for the presentation in our boards, we credit it to which account? Sales account. We credit to trading account. Sorry, ठीक है? We credit it to trading account instead of deducting from purchases. हम उसको trading को credit करेंगे. Like goods destroyed by fire, goods lost by fire, goods lost by theft, right? All those things, right? There may be insurance claim. In such case, there will be three effects. जितने वैल्यू के गुड्स, ग्रॉस वैल्यू लॉस्ट हुए, राइट, डिस्ट्रॉयड हुए, उसको ट्रेडिंग को क्रेडिट किया जाएगा, आउटफ्लो दिखाया जाएगा. सपोज 10,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए, तो ट्रेडिंग क्रेडिट पे 10,000 रहेगा. उसमें से जितना क्लेम होगा, जितना भी क्लेम होगा, दैट क्लेम विल बी shown as an asset, insurance claim receivable, ऐसे asset में दिखाएंगे. 10,000 में से 4,000 claim है suppose, so 10,000 trading credit, asset में दिखा जाएगा 4,000, and the remaining which is not recoverable from the insurance company is your net loss, and that net loss is to be debited to P&L. P&L debit में 6,000 आएंगे. If claim is 8,000, so trading की credit में 10,000, asset में 8,000, 10,000 आउटफ्लो होगा, उसमें से 8,000 कंपनी से आएगा, 2,000 लॉस होगा P&L डेबिट. If it is fully insured, in that case trading credit 10,000 being outflow, gross value 10 का 10 कंपनी से आएगा, एसेट में दिखा जाएगा 10,000. सो पूरा का पूरा रिकवर हो रहा है, सो देयर इज नो नेट लॉस, इसलिए P&L डेबिट में 0. बट इफ अनइंश्योर्ड गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, in that case suppose 10,000 है, तो ट्रेडिंग क्रेडिट 10,000, ग्रॉस लॉस, एसेट में 0 आएगा because they are uninsured, means there is no claim, इसलिए इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल एसेट में 0 रहेगा, 10 का 10 लॉस होगा P&L डेबिट. Then goods
withdrawn by owner for personal use. Again it is outflow. ट्रेडिंग को क्रेडिट किया जाएगा एंड कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा बीइंग ड्रॉइंग्स. ट्रेडिंग क्रेडिट, कैपिटल डेबिट, both should be recorded at which values? Both should be recorded at cost price and not sales price. Outflow transactions other than sales should be recorded at cost price. Then next, goods distributed as free sample, trading credit being outflow and it is an advertisement. इसलिए P&L debit में advertisement में add करके लिखेंगे. If there is no advertisement, we will write a separate line item to advertisement. Goods given as a charity, trading credit being outflow at cost price, buy goods distributed as charity and P&L debit में to charity बोल के, अगर charity already expense है trial balance में, we will add in that expense, or if it is not there is no charity expense, then we will make a separate line item to charity. It's an expense. Sometimes goods are used as a fixed asset. Sometimes goods are used as a fixed asset. In that case, right, हम ट्रेडिंग को क्रेडिट करेंगे बाय राइट फिक्स असेट बोल के एंड वी विल ऐड इन द फिक्स असेट. लाइक एग्जांपल, ए विजय सेल्स का एग्जांपल ले लो. दे परचेसेस टीवीज. टीवीज आर गुड्स फॉर देम. व्हेन दे परचेस इट, इट इज डेबिटेड टू परचेसेस. सम ऑफ द टीवीज आर यूज्ड फॉर द डिस्प्ले पर्पस, फॉर द एडवर्टाइजिंग पर्पस. They don't sell those TVs. In that case, those goods are being used as a fixed asset. The thing that is purchased for resale is goods, and the things that is used for use is a fixed assets. So जो टीवी आपने डिस्प्ले के लिए परचेस किया, जो आप कस्टमर को सेल नहीं करते, they are fixed assets. Intention is to use it and not to sell it. So उन टीवीज की वैल्यू आई हैव टू कन्वर्ट इनटू फिक्स असेट. इसलिए मैं ट्रेडिंग को क्रेडिट करूंगा एंड आई विल ऐड इन असेट एंड फिर मैं उसको डेप्रिसिएट करूंगा. सो दीज आर सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू आउटफ्लो ऑफ द गुड्स. गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, राइट. देन थर्ड, राइट, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट चैरिटी, राइट. देन right, goods used as a fixed asset. ठीक है. Then ये थे आउटफ्लो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस. उसके बाद या related to printing and stationery and postage stamps, they may say some of that has not been used in the current year. It is unused. It is a closing stock. In that case, I will remove it from the expense. Because expense is what you have consumed. Expense is what you have consumed. If you are not consumed something, if you are not received benefit of that, it cannot be your expense. Therefore, unused stationery, unused postal stamps should be deducted from the particular expense on P&L debit, and it should be taken to the asset side. कहाँ पे आएगा? Asset में आएगा. Example, stationery trial balance में दिख रहा है 10,000 debit. Means we have paid for, हमने 10,000 की स्टेशनरी परचेस की है, उसमें से 2,000 इज अनयूज्ड. भले ही हमने 10,000 की स्टेशनरी परचेस की है, उसमें से 2,000 यूज ही नहीं हुआ. जो यूज नहीं हुआ वो एक्सपेंस कहाँ से हुआ? ये नेक्स्ट ईयर में यूज होगा. जैसे आपने 11 के नोटबुक्स 12th में भी यूज कर रहे हो, आपने 11th में यूज नहीं किया, एग्जांपल 12th में कर रहे हो. सो इट इज नॉट एन एक्सपेंस ऑफ 11th, इट इज एन एक्सपेंस ऑफ 12th. आपने परचेस किया था 11th में, बट आप यूज कर रहे हो 12th में. एग्जांपल, कोई बच्चे बोलेंगे सर हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड से एक ही नोटबुक यूज कर रहे हैं, हम लिखते ही नहीं. ऐसे भी हो सकता है. सो अगर ऐसे है तो यू हैव टू मेक श्योर कि जिस ईयर में आपने स्टेशनरी परचेस की है 10,000 है सपोज, उसमें से जो 2,000 अनयूज्ड है वो हटाया जाएगा. बिकॉज आउट ऑफ 10,000 आई हैव कंज्यूम्ड ओनली 8,000. 2,000 इज ऑफ द नेक्स्ट ईयर, आई विल ट्रांसफर इट टू असेट. मैं इस ईयर में उसको असेट में ट्रांसफर करूंगा एज ए क्लोजिंग स्टॉक बोल के, अनयूज स्टेशनरी बोल के, एंड जब नेक्स्ट ईयर में वो यूज होगी तब मैं उसको P&L में लेके आऊंगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोल के. जैसे क्लोजिंग स्टॉक को किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक को हम इस ईयर से निकालते हैं और नेक्स्ट ईयर लेके आते हैं.
नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस बोलते हैं, राइट? ऑन सिमिलर बेसिस अनयूज स्टेशनरी, अनयूज पोस्टर स्टैम्प को भी वही करते हैं, हम इनको इस ईयर से निकाल के असेट में लेके जाते हैं एंड नेक्स्ट ईयर फिर उसको एक्सपेंस में लेके आएंगे. सो दैट वाज द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू अनयूज्ड स्टेशनरी एंड पोस्टर्स, पोस्टेज स्टैम्प्स और टेलीग्राम्स. देन उसके बाद the adjustments related to depreciation. Depreciation is a decrease in the value of the fixed asset because of wear, tear, efflux of time, obsolescence, right, etc. In that case, the value of the fixed asset decreases and I should account for that. So I have to decrease the value of fixed asset, it is my loss. Decrease in the value of asset is my loss. I will deduct it from the asset and I will debit it to P&L. एक्सपेंस है इसलिए मैं उसको P&L में क्या करूंगा, डेबिट करूंगा. However, you should understand that depreciation is always calculated with respect to time, the time for which I have used the asset. If nothing is mentioned, I will provide depreciation for the 12 months, assuming that it has been used for the 12 months, right? Right, assuming that it has been used for 12 months. But if they have specifically said some part of the asset, fixed asset, is purchased during the year, so I have to be very careful. जो मैंने purchased during the year है for some months, so उस part पे मैं proportional depreciation दूंगा. Like example, trial balance shows, right, furniture of 13,000. कल का example ले रहा हूँ. Trial balance shows furniture of 13,000, and of that 5,000 is purchased on 1st October. इसका मतलब बिगिनिंग से 8,000 है. बिगिनिंग से कितना 8,000 है. सो 8,000 पे हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन देंगे. 8,000 पे हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन देंगे. ठीक है. एंड जो 5,000 करंट ईयर में परचेस किया है उस पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा. और इफ इट इज परचेस्ड ऑन द 1st जुलाई, यू स्टिल 31st ऑफ मार्च, इन दैट केस 9 मंथ्स का आएगा. ऑलवेज रिमेंबर, क्या बोल रहा हूं, depreciation, interests are always calculated with respect to what? Right, time for which they have been used. If you are not used for the period, do not provide depreciation or interest. Right? So depreciation deduct from the fixed asset. Fixed asset से minus होगा. And second, fixed asset से minus होगा. And second, it is to be debited to P&L. ठीक है? On the basis of time. Next, आगे. If you are consider capital expense as revenue expense, like example, wages paid for installation of machinery, wages paid for installation of machinery have been debited to wages account. Machinery purchase has been wrongly treated as purchase of goods, example दे रहा हूं. So actually these are the assets. Wages paid for installation of machinery is an asset. It should have been debited to which account? It should have been debited to fixed asset account. However, हमने गलती से उसको wages account में डेबिट किया. हमने गलती से उसको purchase account में लिया. Example, goods machinery purchase included in the purchases. So first we have to rectify it. Means I will deduct machinery purchase which were included in the purchases. Purchase से minus करूंगा because it did not purchase. Include in the purchase, हटाओ purchase से, and add in assets. Similarly, wages paid for installation, those should have been added in the asset and not in the wages expenses में. So I will deduct it from my wages expenses से minus करके मैं asset में add करूंगा. ठीक है. And then I will provide for the depreciation. So पहले मुझे उसको adjust करना होगा and depreciation आएगा. One should take care of that. Then next, उसके बाद there are adjustments related to RDD, bad debts, RDD, PDD, and PDC, provision for discount on creditors. Bad debts की
एंट्री आती है बैड डेट्स टू डेटर्स. बैड डेट्स इंक्रीजेस द लॉस, बैड डेट्स एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे एंड डेटर्स विल डिक्रीज एंड देयरफॉर we will add in bad debts in expense side and we will deduct it from debtors. Debtors से माइनस करेंगे एंड एक्सपेंस में ऐड करेंगे. देन जो डेटर्स बचेंगे उस पे हम आरडीडी की प्रोविजन करेंगे. सो आरडीडी इज कैलकुलेटेड ऑन द एक्चुअल डेटर्स आफ्टर डिडक्टिंग द बैड डेट्स. सो जो भी डेटर्स बचे होंगे उसका जितना भी परसेंटेज हमें प्रोविजन करने को बोला है, we will find out that provision and provision is created by debiting it to P&L. एंट्री आती है P&L account debit to provision account, P&L account debit to RDD account, provision for bad and doubtful debts or reserve for bad and doubtful debt. P&L के डेबिट में आएगा and it will be shown as a deduction from the fixed sundry debtors. Then similarly there can be provision for discount on debtors, PDD. So जो RDD माइनस करने के बाद जो डेटर्स बचते हैं they are that good debtors जिसपे right हम प्रोविजन देंगे फॉर डिस्काउंट. सो उसका जो भी परसेंटेज रहेगा हम वो निकालेंगे एंड प्रोविजन की एंट्री डालेंगे. P&L अकाउंट डेबिट टू PDD, P&L के डेबिट पे आएगा एंड डेटर्स से माइनस किया जाएगा. Similarly, there can be a provision for discount on creditors. If we pay our creditors before the due date in the next year, they may give us discount and that can be our gain. Technically, we should not provide for the PDC because it is a future gain. And as per concept of the prudence or conservatism, we should not provide for the future gains or right future profits unless and until they are realized. However, if it is given in the question, then we have no other alternative but to provide for it. But that is a wrong actually. ठीक है, एग्जाम के लिए मैं समझा रहा हूं. अगर ऐसे है तो that can be future gain. So we will credit it to P&L and we will deduct it from the creditors. Whatever the percentage, जो भी रहेगा वो. ठीक है. But always remember, depreciation, bad debts, RDD, PDD and PDC should be done at the last because after adjusting the values of the fixed asset, after adjusting the values of the debtors and creditors for other adjustments. Then there can be adjustments related to partners transactions like interest on the capital, interest on the drawings, salary to partner, commission to partner, rent to partner. समझ में आ रहा है? All these adjustments are related to partner. First, interest on capital. Interest on capital, whatever capital partner has invested into business, उस पे interest. In that case, right, capital पे हम interest calculate करेंगे. Again, that interest should be calculated with respect to the time for which we have used the capital. ठीक है. Then capital पे हम interest calculate करेंगे at a given rate. Interest on capital is an expense of the firm. Partner has given us money, we are using his money. We are using the capital provided by the partner. It's our liability and liability पे expense बनता है. So it is an expense of the firm, इसलिए इसको P&L को डेबिट किया जाएगा. मैंने आपको बोला था कभी बोलते बोलते इन से फाउंडेशन वही आइटम हम P&L को डेबिट नहीं करेंगे. P&L के नीचे एक और अकाउंट बनेगा जो हम 12th में नहीं करते. P&L के नीचे एक और अकाउंट बनेगा, उसका नाम रहता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. उसको वो डेबिट किया जाता है. वो डेबिट ही होगा बट P&L को नहीं होगा, P&L एप्रोप्रिएशन को होगा. मतलब सबसे ऊपर रहेगा ट्रेडिंग. एक्चुअली ट्रेडिंग के ऊपर भी एक अकाउंट रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. दो अकाउंट्स हम कर नहीं रहे 12th में. एक ट्रेडिंग के ऊपर वाला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर आता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आता है P&L एंड P&L के नीचे आता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कौन सा अकाउंट आता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. पार्टनर के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है ना, ये कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन. ये P&L में नहीं करते, वो P&L एप्रोप्रिएशन में करते. ठीक है, दैट इज एक्चुअल ट्रीटमेंट. बट इन 12th वी डू नॉट प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन, इसलिए हम उसको P&L में करते हैं. देन नेक्स्ट, so interest on capital being expense of the firm,
we will debit it to P&L, right? And we have to give it to the partners, and therefore we will credit to capital account or current account as the case may be. If the question is of a fluctuating capital method, मतलब खाली capital accounts are given in the trial balance, so obviously we will be preparing capital account and capitals will be fluctuating. We will credit it to capital account. But if the question is of the fixed capital method, if the question is of a fixed capital method, मतलब trial balance में capital के साथ current account भी है. In that case, we will be opening current accounts and capital account हम directly liability में लिखते हैं. Interest on capital is always calculated on capital, but in that case it will be recorded through current account. So in that case, I will debit it to P&L being my expense, and I will credit it to current account. एक जगह पे डेबिट हो रहा है, दूसरी जगह पे क्रेडिट हो रहा है. Interest on capital, add in expense, adding capital or adding current account, adding capital or adding current account मतलब credit. Then interest on drawings. Partners withdraws money from business for his personal use, and therefore business charge interest to the partner. That interest charge on the drawings of the partner is a gain of the firm, and therefore it will be credited to P&L account. But अगर रियल लाइफ में देखोगे, P&L को क्रेडिट नहीं करना है. P&L के नीचे जो अकाउंट है ना, P&L अप्रोप्रिएशन, उसको क्रेडिट करना होता है. ठीक है. 12th में हम क्रेडिट करेंगे P&L को, CA फाउंडेशन में उसको ही हम नीचे क्रेडिट करेंगे, एक राइट P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इफ नथिंग इज मेंशन, टू बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स. कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे. क्लियर है? On their drawings, if they have given the specific dates, obviously we will follow the dates. Otherwise, we will calculate them for the 6 months, assuming that the drawings have been done equally over a period of time. Equal interval पे equal amount draw हो रही है, and that to mid of the period. 6 months के लिए निकालेंगे in simple words. So it is the income of the firm, इसलिए P&L credit, and it is to be recovered from the partner. इसलिए कैपिटल को डेबिट या करंट अकाउंट को डेबिट एज द केस में. देन सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और रेंट टू पार्टनर. अगेन दीज आर द एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म, इसलिए हम उसको P&L को डेबिट करेंगे, एंड वी हैव टू ऐड इन लायबिलिटी, हम कैपिटल या करंट अकाउंट में ऐड करेंगे. समझ में आ रहा है? सो सैलरी टू पार्टनर इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म एंड पेएबल टू पार्टनर. पार्टनर का अकाउंट कैपिटल होता है, इसलिए कैपिटल में ऐड करेंगे. P&L को डेबिट करेंगे, कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. कमीशन टू पार्टनर, P&L को डेबिट करेंगे एंड पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. रेंट टू पार्टनर कैन बी एन एडजस्टमेंट. P&L को डेबिट करेंगे, पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. ऑल एडजस्टमेंट्स आर सेम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, all are same because they are the expenses of the firm, therefore debit to P&L and add in capital account या current account, credit of capital or current account as the case may be. Are you getting my point? However, the calculation may differ, like in right, commission may be based on net sales, commission may be based on net sales, or commission may be based on gross profit. If it is based on net sales, then whatever the sales value in the outer column after deducting sales return and after adjusting unrecorded sales, net sale का कैसे मिलेंगे? The sales given in the trial balance minus sales return plus unrecorded sales if any. If there is adjustment related to sales, वो सब करने के बाद जो outer column, trading के outer column में जो sales आएगा, that is net sales, उसका percentage will be the commission to the partner. Or sometimes they say commission will be based on gross profit. Commission will be based on gross profit. In that case, जो भी हमारा सबसे एंड में जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा आफ्टर डूइंग ऑल एडजस्टमेंट्स एंड क्लोजिंग ट्रेडिंग अकाउंट, जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसका परसेंटेज क्या रहेगा? कमीशन रहेगा. अगेन P&L डेबिट, कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट. ठीक है? देन दैट इज द एडजस्टमेंट रेट टू पार्टनर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, salary to partner, commission to partner, rent to partner, all are expenses P&L debit, capital या current account credit, and दूसरा interest on drawings, income of the firm, P&L को credit,
कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट। उसके बाद देयर कैन बी adjustments related deposits included in the expenses. Deposits including the expenses. In that case, if it is included in the expenses, expense से निकाला जाएगा, deducted from expenses and add in asset like motive power includes deposit for the motive power of rupees suppose 10,000. So in that case, I will deduct it from the motive power and I will add in the asset as a deposit is an asset. ठीक है? Then these are the given adjustments. There can be hidden adjustments as well. Like insurance is paid for 15 months. In that case, ऐसे लिखा है, insurance is paid for 15 months. Whatever insurance paid in the trial balance debit side to be divided by 15, multiply by the period that falls in the next year. समझ में आ रहा है? If you are paid from 1st April for 15 months, तो 15 months कब से स्टार्ट होंगे? 1st April इस ईयर के पूरे 12 months एंड नेक्स्ट ईयर के 3 months रहेंगे। इस ईयर के पूरे 12 months एंड नेक्स्ट ईयर के 3 months रहेंगे, ऐसे 15 months होगा। तो जो भी इंश्योरेंस पेड किया है डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3 months इज ए प्रीपेड। If you are paid for 15 months, if you are paid for 15 months, but from the 1st October, 15 months from the 1st October, तो ध्यान देना, out of that 15 months, इस ईयर में कितने months आएंगे? 1st October से 31st March, 6 months इस ईयर में आएंगे, and remaining 9 months फ्यूचर में आएंगे। देखो, 15 months with effect from which? तो हमें ढूंढना है कि इस ईयर में कितने months है, वो एक्सपेंस रहेगा, बाकी जो मंथ्स रहेंगे वो फ्यूचर के रहेंगे, दैट विल बी असेट। इफ 15 मंथ्स फ्रॉम 1st April बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, तो इस ईयर में 12 मंथ, 3 मंथ्स नेक्स्ट ईयर में आएंगे, 3 मंथ्स विल बिकम प्रीपेड। डिवाइड द गिवन फिगर बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3 द प्रीपेड। बट 15 मंथ्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of October, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 15 मंथ्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April, 3 months prepaid, 12 months expense. 15 months with effect from 1st October. So October, November, December, January, February, March, 6 months current year में 9 months prepaid. 15 का bifurcation, 6 months current year expense, 9 months prepaid. So whatever value, suppose 15,000 is the insurance paid. 15,000 divided by 15. 1,000 per month multiply by 9. 9,000 will be prepaid. उन्होंने स्पेसिफिक लिखना चाहिए, इट इज पेड फॉर 15 months। समझ में आ रहा है? अगर 15 month विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of July, इंश्योरेंस ऑफ 15,000 इज पेड फॉर 15 months, लिखा है क्लियरली, पेड फॉर 15 month विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st July, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 9 months हो गए, टोटल 9 months हो गए, ठीक है। So out of 15 months, 9 months current year में आ रहे हैं, जुलाई से मार्च, and 6 months next year में आएंगे। 15 में से 9 months current में, 6 months next year में। So 15,000 divided by 15 months, 1,000 per month, multiply by 6 months of the future, 15,000 में से 6,000 will be prepaid. Insurance of 15,000 paid for 15 months with effect from 1st January, January, February, March, 3 months current year में, 3 months current year में, 15 months में से 3 months current year में, 12 months next year में। So 15,000 divided by 15, 1,000 per month, multiply by 3, multiply by 3 is an expense, multiply by 12 is prepaid. So 15,000 में से 3,000 P&L में रहेगा, 12,000 असेट में जाएगा। बट ऐसे कुछ लिखा नहीं, इतना लिखा है, एग्जांपल, इंश्योरेंस ऑफ 15,000 पेड अप टू, इंश्योरेंस ऑफ 15,000 इज पेड अप टू 30th June of the next year. Insurance of 15,000 paid for the year ended 30th June of the next year, 31st March के बाद 30th June. In that case, we assume that 15,000 is not for the 15 month, but for the year 12 months. Unless and until they specifically told you it is for the 15 months, we will take it for the 12 months. और
unless and until they tell you some different period, हम उसको 12 months लेंगे, इंश्योरेंस फॉर 12 months. So जब क्वेश्चन में लिखा है इंश्योरेंस 15,000 इनटू ब्रैकेट अप टू 30th जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर, या ऐसे लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 30th जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर, इन दैट केस 15,000 को मैं डिवाइडेड बाय 12 करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3, माय अप्रैल मई जून विल बी माय प्रीपेड. इट इज पेड अप टू फर्स्ट ऑफ अक्टूबर, ऐसे लिखा है. इंश्योरेंस ऑफ 15,000 इज पेड अप टू 1st of October फॉर द ईयर एंडेड अक्टूबर, 1st October या 30th September. सो मैं डिवाइडेड बाय 12 करूंगा, मल्टीप्लाई बाय अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, नेक्स्ट ईयर में 6 मंथ्स आ रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब 50% नेक्स्ट ईयर का है, 50% करंट ईयर का है. ऐसे unless and until they specifically tell you some different period like 15 months, 18 months, right, 2 years, 3 years, we assume it is for the year. ठीक है. Similarly, advertisement, you are paid advertisement of 30,000 for 3 years. So each year की advertisement 10,000 होगी, but with effect from which date? Obviously इस current year में paid की होगी, इसलिए वो ट्रायल बैलेंस में रहेगी, तो पेमेंट इस ईयर में हुआ होगा. सो इस ईयर में कब से? अगर 1st अप्रैल से है तो इस ईयर में पूरा साल आ रहा है. सो 30,000 फॉर 3 years, पर ईयर इज 10,000, और ये पूरा ईयर आ रहा है तो एक्सपेंस में रहेगा 10,000, 20,000 प्रीपेड में जाएगा. विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of October ऑफ द करंट ईयर. सो ईच ईयर 10,000 आ रहा है, बट इस ईयर में जस्ट 6 months है. उस एडवर्टाइजमेंट आपने जो एडवर्टाइजमेंट का कैंपेन चलाया है वो 3 years के लिए है, और उस 3 years में से इस ईयर के खाली 6 months है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. सो आउट ऑफ दैट 36 months, 3 years is 36 months, 6 months of the current year, 30 months of the future years. So जो भी 30,000 पेड किया है उसमें से 1/6, 6 months divided by 36, 6 divided by 36, 1/6 मतलब 5,000 is of the current year, 25,000 is asset. ऐसे आपको सोचना होता है. सो एक्सपेंस कितने पीरियड के लिए पेड किया वो देखो, एक्सपेंस कितने पीरियड के लिए देखो, एंड उस पीरियड में से करंट ईयर का कितना है, दैट इज एन एक्सपेंस, रिमेनिंग इज असेट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपने 30,000 की एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया है फॉर सपोज 5 years, सो आई विल डिवाइड बाय 60. 5 years मतलब 60 months. 30,000 divided by 60 मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर में कितने. सपोज एडवर्टाइजमेंट इज 1st जुलाई से, सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 months. So out of that 60 months, 9 months of the current year. So 9 divided by 60 is expense and remaining is asset. 51 months prepaid होगा, 9 months expense होगा. अगर आपने 1st अप्रैल से पेड किया with effect from 1st अप्रैल, तो out of that 60 months, 12 months is of the current year expense, remaining is your 48 months will be asset. Are you getting my point? अगर वो 1st जनवरी से है 60 months के लिए, 5 years के लिए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, out of 60 months, 3 months of the current year expense, 57 months is a asset prepaid. इससे आपको लॉजिकली सोचना होता है. You have to divide the expense, whatever you have paid for the current year and for the future year. हम उसको asset में लेके जाते हैं. Then many times there are hidden adjustments related to calculation of interest. If there is an investment, it will be on a debit side of the trial balance. They have given you rate and they have given you date of purchase. So उस date से year end तक, उस date से year end तक, we have to calculate the interest. Suppose 10% investment of rupees 1 lakh, 10% investment of rupees 1 lakh on a debit side with effect from 1st of October. So 1 लाख पे 10% मिलना चाहिए कौन से पीरियड के लिए, जब से आपने इन्वेस्टमेंट किए तब से ईयर एंड तक, अक्टूबर से 31 मार्च, 6 मंथ्स की आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए. 1 लाख पे 10%, 10,000 फॉर 6 मंथ्स, 10,000 फॉर 6 मंथ्स. Therefore 1 lakh multiplied by 10%, 10,000 for the year, हमें 6 months का चाहिए 5,000. So you are entitled to receive income of 5,000. So check on credit side, opposite side पे, is there any interest? Is there any interest?
अगर इंटरेस्ट है तो 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इन दैट ईयर इंटरेस्ट शुड नॉट बी मोर देन 5,000. अगर 5,000 है, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. बट इफ इट इज लेस देन 5,000, मुझे एडजस्टमेंट करनी होगी. एग्जाम्पल, देयर इट इज जीरो, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं क्रेडिट पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड जीरो है, मीन्स आई हैव इन्वेस्टेड द मनी, I am entitled to receive the interest of 5,000 for 6 months, but I have not received it. So it is receivable. Add in income, add in asset. So मैं income में 5,000 ऐड करूंगा और asset में 5,000 ऐड करूंगा. सर क्रेडिट पे 1,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड है, 1,000 क्रेडिट है. ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे 1,000 है, डेबिट पे इन्वेस्टमेंट है. 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट आया आपका कितना? 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट आया आपका 5,000. 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, गिवन रेट, वहां पे रेट लिखा होगा. रेट नहीं लिखा है तो वो हिडन एडजस्टमेंट नहीं रहेगी. 1 लाख पे 10% फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द ईयर एंड. राइट नाउ अब क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. सो क्रेडिट पे 1,000 है, मींस आई एम इंटाइटल्ड टू रिसीव 5,000 इंटरेस्ट, उसमें से आई हैव रिसीव्ड 1,000. क्रेडिट पे कितना होना चाहिए? 5,000 होना चाहिए, उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं, उससे 1 रुपए कम नहीं. So I have to add 4,000. मेरी hidden adjustment 4,000 से होगी. I will add 4,000 on the income side, 1,000 existing plus 4,000 receivable. I will add 4,000, 1 plus 4 income side पे 5,000 आ जाएगी. That 1,000 is already reflected in the cash because you have received it, and 5,000 will be shown as a asset. हम investment में add करेंगे 4,000. अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे 2,000 है, in that case क्रेडिट पे होना चाहिए 5,000 है 2,000, so I will add 3,000 in the income. I will add asset में 3,000. ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे 4,000 है, होना चाहिए 5,000 6 मंथ्स का, है 4,000, so I will add 1,000. I will add in asset 1,000. सपोज इन लिखा है ट्रायल बैलेंस में लोन टू XYZ, loan to XYZ on debit side. Loan given is an asset. Loan given is an asset. I have given loan to XYZ. I have given loan to XYZ. Suppose मैंने उसको 10 लाख का लोन दिया है at the rate of 10%. 10 लाख का लोन दिया है at the rate of 10%. डेट नहीं दी तो हम पूरे साल का लेंगे obviously. Suppose they have said with effect from 1st July. So जुलाई से मार्च एंड, जुलाई से मार्च एंड 9 months. So 1 लाख पे 10 लाख का लोन दिया है एट द रेट ऑफ 10%, पूरे साल का आएगा 1 लाख, हमें 9 मंथ्स के निकाला है, मल्टीप्लाई बाय 9/12. सो जो भी रहेगा, या थोड़े कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम 12% इंटरेस्ट मानते हैं. 12%. 10 लाख का लोन है, 12% रेट है, तो ईयरली इंटरेस्ट आएगा 1,20,000. एंड आपने लोन दिया है 1 जुलाई से, तो अप्रैल में जून का इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा बिकॉज आपने लोन नहीं दिया है. जुलाई ऑनवर्ड टू 31 मार्च आपने 6 मंथ्स के लिए लोन दिया है, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आना चाहिए. आपने लोन दिया है, इट इज एन असेट, तो उसका इंटरेस्ट रिसीव्ड होना चाहिए क्रेडिट पे. सो 1,20,000 पूरे साल का रहेगा फॉर 9 मंथ्स. 1,20,000 पूरे साल का रहेगा फॉर 9 मंथ्स. 9/12, 1,20,000 मल्टीप्लाई 9/12 करोगे तो 90,000 आएगा. You are entitled to receive 90,000 interest from that person on that loan given. So क्रेडिट पे 90,000 होना चाहिए. अगर नहीं है तो एडजस्ट करो. सर क्रेडिट पे इंटरेस्ट है 90,000, सो होना चाहिए 90 है, 90 कोई हिडन एडजस्टमेंट है नहीं. बट सपोज क्रेडिट पे 0 रुपीज है, सर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, मीन्स 90,000 is a receivable. You are entitled to receive 90,000 interest. Add in income 90,000, add in asset लोन में ऐड करो 90,000. क्रेडिट पे 20,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड है. क्रेडिट पे अपोजिट साइड चेक करो, एसेट जनरेट इनकम क्रेडिट पे होना चाहिए 90 है 20, तो ऐड करना होगा इनकम में 70. 20 कैश में आई है, वो कैश में एडजस्ट हुई होगी. 70 आने बाकी है, add in income 70, add in asset 70, income already received 20, receivable 70, total income 90 दिखेगी. income credit पे 50,000 है, होना चाहिए 90 है 50. in that case I will add just 40,000.
टू मेक इट 90, मैं 90 से ज्यादा भी नहीं लूंगा क्रेडिट पे, कम भी नहीं लूंगा, ठीक है। सो 90 हो जाएगा, 40 ऐड किया, एसेट में 40 आएगा। क्रेडिट पे 80,000 है, आई एम इंटाइटल्ड टू रिसीव 90,000 इंटरेस्ट, ऑफ दैट आई हैव रिसीव्ड 80, सो रिसीवेबल इज 10,000, आई विल ऐड इन इनकम 10,000, आई विल ऐड इन एसेट 10,000। सपोज वही बात 10 लाख का लोन एट द रेट ऑफ 12% आपने 1 जनवरी को दिया है, जनवरी फरवरी मार्च ईयर खत्म, 3 मंथ्स के लिए दिया है। सो 10 lakhs पे 12% फॉर 3 months, दैट विल बी 30,000, दैट विल बी 30,000। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देखो, 30,000 रहेगा। सो क्रेडिट साइड पे 30,000 नहीं है तो एडजस्ट करो, क्रेडिट पे 30 नहीं है तो एडजस्ट करो। सो देखो डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, राइट, आर ऑलवेज कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। On the similar basis, we may have taken loan. That loan is a liability, वो ट्रेडिंग के ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट पे रहेगा, उसका इंटरेस्ट बिकम्स एक्सपेंस, लाइबिलिटी जनरेट एक्सपेंस, डेबिट पे रहना चाहिए। अगर वो डेबिट पे नहीं है तो एडजस्ट करो। एग्जांपल, आई हैव टेकन लोन ऑफ रुपीज 5 lakhs, 5 lakhs एट द रेट ऑफ 10%, 5 lakhs पे 10% 50,000 इंटरेस्ट आता है। इफ द पीरियड इज नॉट गिवन, लोन कब लिया है, हम मानते हो पहले से लोन है, लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड है। सो ऑन दैट लोन वी हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फॉर 12 months। सो 5 lakhs का 10%, 50,000 डेबिट पे होना चाहिए, अपोजिट साइड पे इंटरेस्ट होना चाहिए। नहीं है तो एडजस्ट करो, अगर है तो अच्छी बात। सपोज डेबिट साइड पे 0 है, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, मींस यू आर लायबल टू पे 50,000 इंटरेस्ट। अगर आपने पैसे उठाए तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। You use the money for 12 months, so you are liable to pay interest for the 12 months. So add in expense, हम 50,000 expense में ऐड करेंगे और liability में ऐड करेंगे लोन में 50,000। Suppose डेबिट साइड पे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे 10,000 है, आउट ऑफ 50,000 इंटरेस्ट यू आर ऑलरेडी पे 10,000, वो 10,000 कैश से ऑलरेडी माइनस हो चुका है। नाउ यू आर लायबल टू पे जस्ट 40,000, सो 10,000 प्लस 40,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, I will add in liability 40,000 outstanding interest। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे 40,000 है, इंटरेस्ट होना चाहिए 50, उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं, 1 कम नहीं, 50 होना चाहिए। 40 पेड हुआ है, 50 में से 40 पेड हुआ है, अच्छी बात है, मतलब 10,000 पेएबल है। आई विल ऐड 10,000 इन द एक्सपेंस, आई विल ऐड 10,000 इन द लायबिलिटी। अगर यही लोन मैंने 1 अक्टूबर को लिया है तो क्या करोगे, पूरे साल का इंटरेस्ट 50,000 आ रहा था, तो हाफ ईयर का कितना रहेगा, अक्टूबर से मार्च 25,000। सो डेबिट पे 25,000 होना चाहिए, उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं, 1 रुपए कम नहीं। अगर कम है तो एडजस्ट करेंगे। डेबिट पे कुछ भी नहीं, मतलब 25,000 इंटरेस्ट मुझे पे करना है, मैंने 0 पेड किया। डेबिट पे कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने 0 पेड किया। सो 25,000 का 25 पेएबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एड इन एक्सपेंस, एड इन लायबिलिटी। अगर डेबिट पे 5,000 है, मतलब आउट ऑफ 25,000 आई हैव पेड 5,000, वो कैश से माइनस हुआ होगा। 25 में से 5 पेड हुआ है, मतलब अभी भी 20 पेएबल है। आई विल ऐड 20,000 इन एक्सपेंस, 5 पेड प्लस 20 पेएबल, एक्सपेंस बनेगा 25 जो होना चाहिए। आई विल ऐड इन लायबिलिटी 20,000। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे 18,000 पेड है, इंटरेस्ट डेबिट अपोजिट साइड पे चेक करो, होना चाहिए 25, हुआ है 18, 25 पेड होना चाहिए, पेड हुआ है 18, अभी भी कितना पेएबल है 7। सो 18 में मैं 7 ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग बोल के इन P&L डेबिट, एंड लायबिलिटी में ऐड करूंगा 7,000 एज पेएबल। दीज आर हिडन एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट्स, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। देन इसके सिवा लेट मी थिंक, अगर ऐसे कोई एडजस्टमेंट है जो मेरे से मिस हुई है। अच्छा, देयर इज वन क्वेश्चन, सर स्टेशनरी का क्या होता है? देखो, अनयूज स्टेशनरी और अनयूज पोस्टल स्टैंप में हम क्या करते हैं, दे हैव नॉट बीन यूज्ड, जो यूज नहीं हुआ है वो एक्सपेंस नहीं होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो यूज हुआ है वो एक्सपेंस, जो अनयूज्ड है वो असेट। सो प्रीपेड होता है, वो प्रीपेड, उसको प्रीपेड की तरह देखो। क्लोजिंग स्टॉक में प्रीपेड की तरह देखता हूं, पहले ही परचेस करके रखा है बट सेल नहीं हुआ है, प्रीपेड। एक्सपेंस से हटाओ, असेट में लेके जाओ। हम परचेस से माइनस नहीं करते, हम क्रेडिट करते हैं ट्रेडिंग को। सिमिलरली अनयूज्ड स्टेशनरी एंड अनयूज्ड पोस्टल स्टैम्प्स आर लाइक परचेस इन एडवांस, प्रीपेड जैसा। सो हम एक्सपेंस से माइनस करेंगे और असेट में ऐड करेंगे। सो अनयूज्ड स्टेशनरी एंड अनयूज्ड पोस्टल स्टैम्प
स्टेशनरी एंड पोस्टल सेल से माइनस होगा और असेट में ऐड होगा. ठीक है. I think I have covered almost all adjustments. Let's see. I wanted to revise everything basically. Any adjustment that I have not covered. इसमें से एक दो क्वेश्चन बाकी आई नो, वो हम करेंगे, बट सैलरीज और रेंट पेड, यस, ये मेरा कवर करना बाकी है. सैलरीज और रेंट पेड. सपोज दे से सैलरी इनटू ब्रैकेट 10 months. सो जो भी सैलरी पेड की है दैट इज फॉर द 10 months. सपोज यू हैव पेड 1 लाख सैलरी, ट्रायल बैलेंस डेबिट में 1 लाख है, इनटू ब्रैकेट 10 months. सो दैट 1 लाख इज फॉर 10 months. सो पर मंथ आएगा 10,000. Actually your salary should be for 12 months because your year is 12 months. So 10,000 is a per month. So 2 months is outstanding. I will add in expense 2 months ka 20,000 and I will add in liability 20,000. Rent paid for 9 months 90,000. So 90,000 is for 9 months. Per month is 10,000. So 3 months ka rahega 30,000. 90 plus 30. Total rent 12 month का rent 1,20,000 होना चाहिए. 12 मंथ का रेंट 1,20,000 होना चाहिए. उसमें से 90 पेड हुआ है, मतलब 30 पेएबल है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एड इन एक्सपेंस 90 में 30 ऐड करूंगा लाइक एक्सपेंसेस में, एंड 30,000 लायबिलिटी में ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के. नेक्स्ट, देन सिमिलर फॉर इनकम्स. देखो यहां पे पढ़ो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. These points are very important. फर्स्ट पॉइंट क्या है, पढ़ो. What is the first point? Each item of the trial balance will be included only once in the final account, either in the trading debit, right? Either in the trading or P&L or the balance sheet or in the working section. That is capital. Example working note कर रहे हैं हम, capital account वहां पे आएगा. Each adjustment has actually minimum 2 effects होने चाहिए. वहां पे 2 effects लिए, like goods lost by fire and insurance claim receivable. So उसमें 3 adjustments होते हैं. Minimum 2 effects for similar amount. Debit balances of the trial balance will appear on the debit side of the trading account or P&L account or the asset side of the balance sheet. ये लास्ट ईयर तक नहीं लिखा था, बट मैं बच्चों को हमेशा बोलता था डेबिट रिमेन्स डेबिट, क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट. ये उन्होंने लिया है. Credit balances on the trial balance will appear on the credit side of the trading account or profit and loss account or the liability side. However, there are exceptions. Only 2 exceptions. Purchase returns, क्रेडिट का आइटम डेबिट से माइनस होगा. सेल्स रिटर्न, डेबिट का आइटम क्रेडिट से माइनस होगा. अदरवाइज डेबिट रिमेन्स डेबिट, क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट. गुड. आगे, if the salaries and wages are given as a separate item, salary अलग, wages अलग. wages trading में, salary P&L में. क्या लिखा है, पढ़ो. Right, wages are shown on the debit side of the trading account, while the salaries are shown on the debit side of the P&L account. If the item is wages and salaries, trading debit, and salaries and wages, P&L debit. Yes, sixth is very important. Sixth, if the trial balance contains only trade expenses, ट्रायल बैलेंस में एक ट्रेड एक्सपेंसेस है तो P&L में आएगा. The item will be shown on the debit side of the P&L. If the trial balance contains trade expenses and also other items like sundry expense or office expense
और जनरल एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंस, मतलब दो है, एक ट्रेड एक्सपेंस भी है और इनमें से कोई भी एक है. इन दैट केस ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग डेबिट, एंड जो दूसरा है वो P&L डेबिट. The trade expenses will be shown on the debit side of the trading account, while the other items of the expenses are shown on the debit side of P&L. ठीक है. Then देखो, ये जो उन्होंने नोट्स लिखे हैं ना, ये लास्ट ईयर तक उन्होंने नहीं लिखे थे, एंड आई यूज्ड टू गिव इन राइटिंग टू द स्टूडेंट्स. अब देखो उन्होंने लिख के दिया, द एडजस्टमेंट्स फॉर द बैड डेट्स एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स should be effected after other adjustments for the debtors are given the effect. Such adjustments can be unrecorded sales, drawings included in the debtors. देखो drawings मैंने लिख के मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था. Goods withdrawn by owner are included in the debtors. तो हम debtors से हटाएंगे और drawings में ऐड करेंगे. Goods withdrawn by owner included in the debtors, वो debtors में नहीं होनी चाहिए, वो drawings में होनी चाहिए. So debtors से माइनस करेंगे और drawings में ऐड करेंगे. ठीक है. आगे drawings treated as sales etc. ये ऐसे किया है, goods withdrawn by owner are included in the sales. ऐसे भी हो सकता है, समझ में आ रहा है. treated as sales कुछ भी हो सकता है. then पहले हम उन एडजस्टमेंट्स को इफेक्ट देंगे एंड फिर हम क्या करेंगे उनको, राइट, बैड डेट्स आरडी पीडी के एडजस्टमेंट देंगे, मतलब वो एंड में करनी है. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स शुड बी गिवन इफेक्ट आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर द बैड डेट्स एंड द आरडीडी. और मैंने वो 45 मिनट्स का एक लाइक लास्ट में मैंने लेक्चर लिया था, देखो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन reserve for discount on creditors should be given effect after making all other adjustments concerning the creditors. और एडजस्टमेंट बिल रिसीवेबल के हमने किए नहीं. बिल रिसीवेबल के एडजस्टमेंट मैं बोलता हूं पहले ये कंप्लीट करते हैं, राइट. Hidden or self-explanatory adjustments are given effect even if there is no special instruction in the problem to that respect. Closing stock should be valued at cost or market price, whichever is lower. Actually, it is not the market price, it is net realizable value. This is given in the accounting standard 2, inventories. I can show you. I am taking you to, right? एक सेकंड में ये डिलीट करता हूं, पहले क्लोज करता हूं ये सब टैब्स. There are many tabs which I use while teaching students, उनको दिखाने के लिए सब चीजें. Okay, let's see. This is downloaded from MC website, Ministry of Corporate Affairs. कंपनीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, बराबर. दे आर ड्राफ्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड मेड मैंडेटरी बाय एनसी. ठीक है. ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. ठीक है. वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ड्राफ्ट. तो यहां पे क्या लिखा देखो, आई कैन शो यू. दिस इज AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज. ठीक है. कहां पे तो रहेगा, देखो. The word is net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of the business less estimated cost of completion and the estimated cost to make that sale happen. So net realizable value मतलब आपको actually हाथ में कितना आएगा. Suppose this mobile is a inventory, अगर इसको हम सेल करते हैं तो एक्चुअली कितना मिलेगा. सपोज इसकी वैल्यू 30,000 है एंड सेल करने के लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1000 करना पड़ रहा है. सो 30 माइनस 1000, 29,000 इज एनआरवी. अगर मैं सेल करने जाता हूं, एनआरवी इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, इट इज एस्टिमेटेड वैल्यू, इट्स नॉट एक्चुअल वैल्यू. एक्चुअल में सेल हुआ नहीं है क्लोजिंग स्टॉक का, वो होगा नेक्स्ट ईयर में होगा. जब वो होगा तब मुझे नेट कितना मिलेगा.
सो मुझे 30,000 मिलेगा, वो मिलने के लिए मुझे एक्सपेंस करने पड़ेंगे, सपोज 1,000 के एक्सपेंस. सो माय नेट एनआरवी इज 29,000. 30,000 इज मार्केट वैल्यू. उसको रियलाइज करने के लिए 1,000 पे करना पड़ेगा. तो एनआरवी इज 29. डू नॉट वैल्यू एट 30,000. उसकी कॉस्ट सपोज 40 है, सपोज कॉस्ट 25,000 है. मोबाइल की कॉस्ट 20 है, इन्वेंट्री है, मोबाइल डीलर है, उसकी इन्वेंट्री 25,000 पे कॉस्ट. ये सेल नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर में सेल होगा. जब ये सेल करने जाएगा, इससे 30,000 मिलेगा. इसकी मार्केट वैल्यू 30 है, बट टू मेक दैट सेल हैपन you have to incur 1,000. So cost is 30, market price is 30, cost is 25,000, market price is 30,000, but NRV is 29,000. Try to understand. So we don't compare 25 and 30, we compare 25 and 29. रहेगा यहाँ पे. देखो क्या लिखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पैरा 5. अकाउंट ऐसे एक पैरा नंबर 5 आप देखोगे ऐसे रहता है, ठीक है. देखो यहाँ पे पैराग्राफ्स 1 2 3 4 5 ऐसे पैराग्राफ्स होता है, ठीक है. सो वी आर डूइंग हम इनटू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, सॉरी पैरा 5 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. इट इज नॉट मार्केट प्राइस. आगे अच्छा, ये जो है ना, इसके मुझे क्वेश्चंस नहीं मिले, मैं ये अलग से ले लूंगा, ठीक है. ये बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये अभी तक मैंने लिया नहीं है, मैं ले लूंगा, डोंट वरी. व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ्स. और वो 6 मंथ्स क्यों आता है, ये भी मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाया था इन द फंडामेंटल्स. इफ द पार्टनर इंट्रोड्यूस कैपिटल इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, then the interest on capital should be calculated on the proportionate basis. This complication is not expected at your 12th standard level. This is not complicated. Example trial balance में ऐसे लिखा है, debit and credit, A is capital and B is capital. A का कैपिटल 1 लाख है, B का कैपिटल 80,000 है. और एडजस्टमेंट में लिखा है in between year A has introduced 20,000 capital and B has introduced suppose 30,000 capital. तो हम क्या मानते हैं, ध्यान देना, A का एंड में कितना कैपिटल है 1 लाख, A का एंड में कितना कैपिटल है 1 लाख. इसने इन बिटवीन द ईयर कब लाया था 20, कभी भी लाया होगा. 1 अक्टूबर को तो 6 मंथ्स, 1 जनवरी को 3 मंथ्स, 1 जुलाई को, सपोज इसने 1 अक्टूबर को लाया था, इसने 1 जनवरी को लाया, तो ओपनिंग में कितना कैपिटल रहेगा 80. सो हम 80 पे पूरे साल का निकालेंगे एंड 20 पे 6 मंथ्स का निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब बी का देखते हैं, बी का क्लोजिंग कैपिटल कितना है 80. इन बिटवीन द ईयर 1 जनवरी को उसने 30,000 लाया, मतलब उसका ओपनिंग में कितना रहेगा 50. हम कैपिटल अकाउंट करेंगे ना, कैपिटल में हम ए के कैपिटल पे लेंगे बाय बैलेंस, ट्रायल बैलेंस वाली वैल्यू लेंगे. इसकी 1 लाख है और इसकी 80 है, वो चेंज नहीं होगी. बट इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते टाइम हमें ये समझ में आना चाहिए, इस 80 में से 30 इन बिटवीन ईयर है, मतलब ओपनिंग में 50 था, सो 50 पे पूरे साल का एंड 30 पे 3 मंथ्स का. इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए वो रहेगा. वैसे भी जब हम फाइनल अकाउंट्स करते हैं, ये वैल्यूज ट्रायल बैलेंस की आती है. ट्रायल बैलेंस में 1 लाख है तो कैपिटल के क्रेडिट पे 1 लाख, ट्रायल बैलेंस में 80,000 है तो कैपिटल के क्रेडिट पे 80. बट इंटरेस्ट निकालते टाइम इस 1 लाख में से 20,000 1 अक्टूबर को आया है, समझ में आ रहा है. तो ये इंटरेस्ट निकल जाएगा इस 20,000 पे 6 मंथ्स एंड 80 पे पूरे साल का. ये 80,000 में से 30,000 1 जनवरी को आया है, 30,000 पे 3 मंथ्स एंड 50 पे पूरे साल का. बट उन्होंने लिखा है सच कॉम्प्लिकेशंस आर नॉट एक्सपेक्टेड एट 12th लेवल. दीज आर नॉट कॉम्प्लिकेशंस, दीज आर कंसेप्ट्स. यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बोलोगे तो इंसल्ट है. दीज आर नॉट कॉम्प्लिकेशन, दीज आर कंसेप्ट्स. नहीं, ये भी मैंने लिया था
द ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइटम्स अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस ओनली। अगर ट्रायल बैलेंस में, और मैंने इसमें एक अलग से लेक्चर भी लिया था, अगर ट्रायल बैलेंस में तो कैसे दिखता है, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस होगा तो कैसे, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में तो क्रेडिट रहेगा लायबिलिटी में, एनी प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट पे रहेगा ट्रायल बैलेंस के डायरेक्टली एसेट में, डोंट डिडक्ट फ्रॉम एक्सपेंस एंड टेक इन एसेट, वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है। एनी आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम रिसीवेबल डेबिट पे रहेगी, एसेट में लेके जाएंगे। एनी इनकम रिसीव एडवांस, प्री रिसीव्ड इनकम क्रेडिट पे रहेगी ट्रायल बैलेंस के। डोंट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इनकम एंड दैट देन ऐड इन लायबिलिटी, नो, वो ऑलरेडी सब्सट्रैक्ट हो चुकी है, खाली लायबिलिटी में लिखना बाकी है। डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में तो डेबिट पे रहेगा, डोंट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम एसेट, वो ऑलरेडी सब्सट्रैक्ट हो चुका है, खाली P&L के डेबिट में लिखो। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अगर ट्रायल बैलेंस में है, लॉस है मतलब डेबिट पे रहेगा, डायरेक्टली P&L डेबिट, बिकॉज एवरी आइटम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, every item of trial balance has one unique effect. Has one unique effect. Therefore, हाँ क्या बोला मैंने, डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में तो डायरेक्टली P&L डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अगर ट्रायल बैलेंस में तो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, P&L डेबिट। अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है ट्रायल बैलेंस में तो क्रेडिट रहेगा, उधर नहीं है तो लिखो आप, एक लाइन डाल दो ऊपर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर है ट्रायल बैलेंस में तो क्रेडिट पे रहेगा और हम उसको P&L क्रेडिट में डाल देंगे, प्रॉफिट है इसलिए, ठीक है। देन गुड्स विड्रॉन बाय फायर, अगर ट्रायल बैलेंस में गुड्स विड्रॉन बाय फायर आइटम है अलग से, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर बोल के आइटम है ट्रायल बैलेंस में, तो डेबिट रहेगा, एंट्री होती है गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर टू परचेस ड्रॉइंग्स टू, ये तो होता क्या, अगर वो डेबिट पे है तो इट इज ए गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर इज एक्चुअली ड्रॉइंग्स, इट इज व्हाट, ड्रॉइंग्स, डेबिट पे रहेगा, कैपिटल के डेबिट पे जाएगा। बच्चों को लगता है सर P&L के डेबिट में डालना है, ट्रेडिंग के, नो, इट्स ए ड्रॉइंग्स, ठीक है। उन्होंने एक्चुअली ड्रॉइंग्स वर्ड यूज करना चाहिए, बट दे हैव यूज्ड गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। अगर वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट पे रहेगा, कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट पे। अगर एडजस्टमेंट में होता है तो ट्रेडिंग को क्रेडिट करके कैपिटल के डेबिट में डालते हैं, बट अगर वो ट्रायल बैलेंस में तो डायरेक्टली कैपिटल के डेबिट या करंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कल ही हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें रिजर्व फंड था, all the kinds of reserves, all reserves, try to understand, all funds, right, have credit balance, they are to be taken on the liability side। बच्चों को ये आइटम इंपॉर्टेंट लग सकता है। आगे डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से पैसे लेकर के, फ्रॉम पब्लिक, इट्स अ लायबिलिटी। डिपॉजिट्स टेकन फ्रॉम अदर पर्सन्स, कभी ना कभी तो रिटर्न करना पड़ेगा, इज ए लायबिलिटी। डिपॉजिट गिवन इज एन एसेट, डिपॉजिट टेकन इज ए लायबिलिटी। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल, अगर ट्रायल बैलेंस में तो एडवर्टाइजमेंट है, एक्चुअली उन्होंने उसको एडवर्टाइजमेंट बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट, बट उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की जगह उन्होंने वर्ड यूज किया गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल, ट्रायल बैलेंस डेबिट में रहेगा, P&L डेबिट में जाएगा, लाइक एन एडवर्टाइजमेंट। अगर एडजस्टमेंट में होता है तो ट्रेडिंग को क्रेडिट करके P&L डेबिट में लेके आते हो। अगर वो ट्रायल बैलेंस में तो ट्रेड परचेस से ऑलरेडी माइनस हो चुका है, फिर से क्रेडिट मत करो ट्रेडिंग को, जस्ट P&L के डेबिट में लिखो। इफ देयर इज अ सस्पेंस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, हो सकता है टू टैली द ट्रायल बैलेंस देयर कैन बी सस्पेंस अकाउंट। अगर वो डेबिट बैलेंस है स्ट्रेट अवे एसेट में लिखो, अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी में लिखो। आगे अगर वो डेबिट बैलेंस है मतलब वो डेबिट साइड पे है, तो डेबिट साइड पे मतलब वो डेबिट बैलेंस हो गया, सस्पेंस को एसेट में लिखो। अगर वो क्रेडिट साइड पे है तो उसको लायबिलिटी में लिखो। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, दे आर नॉट एट कलेक्टेड, सेंड फॉर कलेक्शन, एंट्री हो चुकी है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट बैलेंस है वो एसेट में आएगा। मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर सिखाते टाइम मैंने बोला था कि इफ दे आर अनकलेक्टेड टिल द, देखो मैच्योरिटी डेट, उसकी लीगल ड्यू डेट नेक्स्ट ईयर में, 31 मार्च के पहले हमने कलेक्शन के लिए भेजा है, ड्यू डेट नेक्स्ट ईयर में, सो 31 मार्च पे दे आर स्टिल फॉर कलेक्शन, अकाउंट डेबिट रहेगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन इन ट्रायल बैलेंस,
उसको असेट में लिखा जाएगा, ठीक है। देन and transfer it to individual capital account. So they expect you to prepare capital account. और मैं इस ईयर में वो कैपिटल अकाउंट बन रहा है, बट जब से मैं सिखा रहा हूं लास्ट 4 years है, मैं हमेशा कैपिटल अकाउंट करता हूं, because I know this is the reality. It's good thing they have made some really good fantastic changes. Still this book is not at par, but yes previous syllabus से it's like good. नहीं, ठीक है। इसके सिवा एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू बिल्स, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू बिल्स, 3 ही एडजस्टमेंट्स है जो हम कवर करेंगे, ठीक है। एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू बिल्स, फर्स्ट एडजस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड ना, हटाओ ना वहां से, नहीं होना चाहिए उधर। तो बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल, हम डिसऑनर की एंट्री डालेंगे, ड्रॉवी टू बिल्स रिसीवेबल। क्या एंट्री आती है डिसऑनर की? जिसने बिल दिया ड्रॉवी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल में है वो, मतलब हमने बिल रिटर्न करके रखा है, हमने ड्रॉवी से बिल लिया था, डेटर से बिल लिया था, ड्रॉवी द डेटर, उससे बिल लिया था। जब उसने बिल दिया डेटर्स डिक्रीज हो गए, बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हो गए, हमने वो रिटर्न किया है, इसलिए वो बिल्स रिसीवेबल में। अगर हमने डिस्काउंट किया होता तो वो हमारे बुक्स में रहेगा ही नहीं। हमने इंडोर्स किया होगा, वो हमारे बुक्स में रहेगा ही नहीं। अगर हमने कलेक्शन के लिए भेजा है तो कलेक्शन अकाउंट में दिखेगा, किस में दिखेगा? ट्रायल बैलेंस डेबिट में दिखेगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अगर वो डिसऑनर होता है, रिटर्न किया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में दिखेगा। अगर ट्रायल बैलेंस में बिल्स रिसीवेबल है, व्हाट इट मींस, अगर ट्रायल बैलेंस में बिल्स रिसीवेबल है, इट मींस बिल्स ड्रॉन एंड रिटेन, बिल्स ड्रॉन एंड रिटेन। अगर ट्रायल बैलेंस में बिल सेंड फॉर कलेक्शन है डेबिट पे, मतलब बिल ड्रॉन एंड सेंड फॉर कलेक्शन। लिख लेना, लिखो, लिख लेना, बिल्स रिसीवेबल इन ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड डैश, बिल्स रिसीवेबल इन ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, मतलब bills drawn on debtors, bills drawn on debtors and retained till March end, and retained till March end। 4 ऑप्शन होते हैं, रिटेन करना, डिस्काउंट करना, इंडोर्स करना एंड फोर्थ कलेक्शन के लिए भेजना। तो अगर वो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में है, मतलब लिख लेना, बिल्स रिसीवेबल राइट on debit side of the trial balance means bills drawn on the debtors and retained till March end। अगर ऐसे है तो हमने उसको कुछ डिस्काउंट नहीं किया, डिस्काउंट और इंडोर्स करोगे तो ट्रायल बैलेंस में बिल्स रिसीवेबल रहेगा ही नहीं, ना ही वो कलेक्शन अकाउंट दिखेगा, ठीक है। सो हमें डिसऑनर की एंट्री डालनी है, जिसने बिल दिया है ड्रॉवी, ड्रॉवी को डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, बिल हमारे पास ही था तो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट। सो डेटर्स विल इंक्रीज, बिल्स रिसीवेबल विल डिक्रीज। अगर ऐसे लिखा है बिल्स विच वर सेंड फॉर कलेक्शन नाउ डिसऑनर्ड, बिल्स विच वर सेंड फॉर कलेक्शन नाउ डिसऑनर्ड, जो कलेक्शन के लिए भेजे वो किस कहां पे रहेंगे? ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे रहेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अगर वो डिसऑनर होते तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? डेटर ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। हम डेटर्स इंक्रीज करते हैं एंड बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिक्रीज करते हैं। सो उस केस में लिख लेना, लिख लेना, मैं बहुत कंसेप्चुअल चीज सिखा रहा हूं, जो भी चीज है एंट्री के थ्रू मैं समझा रहा हूं। बिल्स इंक्लूड रिटेन बिल डिसऑनर, रिटेन ऐसे लिखो, रिटेन्ड बिल डिसऑनर, add in debtors minus from bills receivable, add in debtors minus from bills receivable, bill sent for collection dishonored। पहले बोला रिटेन बिल डिसऑनर्ड, दूसरा बोल रहा हूं बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड। अगर ऐसे महाराष्ट्र बोर्ड में ऐसे इतना कंसेप्चुअल जाएंगे, आई डोंट थिंक सो, बट एज ए एक तो तुम कैंप स्टूडेंट यू मस्ट नो कि क्या कंसेप्ट्स होते हैं। सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर, तो एड इन डेटर्स माइनस फ्रॉम बिल सेंड फॉर कलेक्शन, एड इन डेटर्स माइनस फ्रॉम बिल सेंड फॉर कलेक्शन, वो डेबिट पे रहेगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अगर आपने कलेक्शन के लिए भेजा है, ठीक है। देन जनरली बिल्स डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड,
तो उसकी एडजस्टमेंट नहीं रहेगी, बिकॉज हमें बैंक बैलेंस एडजस्ट करना होगा और हम उसको एसीबी करना होगा, एडजस्टेड कैश बुक, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। और लिख लेना एंडोस बिल डिसऑनर। तीसरा एंडोस बिल डिसऑनर, एंडोस बिल डिसऑनर। पहला लिखा रिटेन बिल डिसऑनर, जिसको लोग बोलते हैं डिस्काउंट बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल। उसमें मैंने बोला एड इन डेटर्स माइनस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर, तो ट्रायल बैलेंस में बिल सेंड फॉर कलेक्शन रहेगा, वहां से माइनस करो, असेट से ही माइनस करो और असेट में ऐड करो, डेटर्स में ऐड करो एंड बिल सेंड फॉर कलेक्शन से माइनस करो। तीसरा मैंने बोला एंडोस बिल डिसऑनर, एंडोस बिल डिसऑनर एंट्री आती है जिसने बिल दिया, डेटर डेबिट, जिसको बिल ट्रांसफर किया था, क्रेडिटर क्रेडिट, तो डेटर्स विल इंक्रीज, क्रेडिटर्स विल इंक्रीज। लिख लेना एड इन डेटर्स, एड इन क्रेडिटर्स, add in debtors, add in creditors. Last 2 minutes before I actually conclude the lecture for the day. ठीक है, बिकॉज कोई लोगों का 9 बजे लेक्चर है, गिव मी 4 मिनट्स में 9 के पहले बराबर क्लोज करूंगा। ठीक है, सो मैंने अभी तक बोला रिटेन बिल डिसऑनर, एड इन डेटर्स माइनस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर, एड इन डेटर्स माइनस फ्रॉम बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सो दोनों असेट साइड पे एडजस्ट हो रहे हैं। एंडोस बिल डिसऑनर, एंडोस बिल डिसऑनर अगर ऐसे है तो एड इन डेटर्स, एडिंग क्रेडिटर्स ऑन लायबिलिटी। अरे फोर्थ भी लिख लेना डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, नहीं पूछेंगे बट मैं समझा रहा हूं। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर जो सेव फाउंडेशन में बीआरएस कर रहे हैं उनको क्लिक होगा। डिस्काउंटेड बिल, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, बाकी लोगों को समझा तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है तो हमारे बैंक से पैसा डेबिट होता है, बैंक हमसे वो पैसा लेती है, तो हमारे अकाउंट में से पेमेंट हुआ है, क्या एंट्री होती है व्हेन डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है, जिसने बिल दिया ड्रॉवी, डेटर डेबिट, टू जिसको बिल ट्रांसफर किया था बैंक क्रेडिट, एंट्री डेटर डेबिट, डेटर इंक्रीज, लिखना एड इन डेटर्स एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक बैलेंस कम कर रहे हो, माइनस फ्रॉम बैंक बैलेंस, माइनस फ्रॉम बैंक बैलेंस, हम बैंक अकाउंट को एडजस्ट कर रहे हैं। जनरली बैंक अकाउंट को एडजस्टमेंट की एंट्रीज हमारे सिलेबस में नहीं है, but in real life we have to adjust the bank balance as well when we prepare BRS. so लिख लेना, ये मैंने 4 डिसऑनर बोले, रिटेन बिल डिसऑनर, एड इन डेटर्स, माइनस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर, एड इन डेटर्स माइनस फ्रॉम बिल सेंड फॉर कलेक्शन असेट साइड, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, एड इन डेटर्स माइनस बैंक बैक फ्रॉम असेट साइड। अगर सर बैंक बैलेंस नहीं असेट साइड पे, ओडीए लायबिलिटी पे, तो बैलेंस शीट टैली करने के डेटर्स में ऐड करना होगा और लायबिलिटी पे ओडी ऐड करना होगा। आप ये मत बोलो कि माइनस करेंगे, अगर ओड लायबिलिटी में है बैंक बैलेंस तो आपने डेटर्स में ऐड किया है, एंड अगर लायबिलिटी से माइनस करते हो तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। सोचो डेटर्स में ऐड हुआ है, जब पेमेंट होगा बैंक से ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होगा, सो एसेट में ऐड करो, ओवरड्राफ्ट में ऐड करो लायबिलिटी में। अगर असेट में बैलेंस है तो असेट इंक्रीज होगी, डेटर्स टैली करने के लिए बैंक बैलेंस डिक्रीज करना होगा। You must have common sense to tally balance sheet. And the last one, right? Endos bill dishonor, उसमें मैंने बोला कि add in debtors minus from creditors. Oh sorry, add in debtors minus from add in debtors, add in creditors. ठीक है, ये थे। उसके बाद yes, yes, ये थे आपके bills related ये। So I may take the questions. वो ट्रेड एक्सपेंसेस की ये है मैडम, एजम्पशन ये है, अगर ट्रायल बैलेंस में खाली ट्रेड एक्सपेंस है तो वो पीएनएल में आएंगे, दैट इज अ स्टैंडर्ड एजम्पशन। अगर ट्रेड एक्सपेंस के साथ ट्रायल बैलेंस में एक अलग आइटम है, लाइक मिसलेनियस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस, ऐसे 2 अलग अलग आइटम है, तो ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा, दूसरा पीएनएल में आएगा, दैट इज अ स्टैंडर्ड एजम्पशन। इसके पीछे एज सच कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन या कैपिटल अगर पहले से ही हाफ भर दिया है तो हमें लायबिलिटी में बस हाफ अमाउंट, यस यस ऑब्वियसली। देखो ऑलवेज कैलकुलेट फॉर पीरियड, पहले देखो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और फिर देखो कितना है, लाइक लोन लाइफ क्रेडिट पे है, उस पर कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर डेबिट पे ढूंढो है क्या, नहीं है तो एडजस्ट करो। ठीक है, ऐसे यू मस्ट पहले पता होना चाहिए कितना होना चाहिए। ठीक है, सो ये 2 क्वेश्चंस थे
I have almost revised the entire chapter. जितना जितना all adjustments I have revised, right? I have revised special points from the chapter, right? And on this note, I will end today's lecture. I wanted to revise one day. मॉर्निंग में थोड़ा फ्रेश रहता है तो इसलिए मैंने रिवाइज किया. नेक्स्ट लेक्चर में, कल जो आफ्टरनून में लेक्चर होगा उसमें हमारा ये चैप्टर डन हो जाएगा. आई विल बी ऑब्वियसली सॉल्विंग द क्वेश्चंस हेंसफोर्थ. मैं एडिशनल लेक्चर्स लेके ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एंड नॉर्मल लेक्चर्स में वी विल बी डूइंग द एनपीओ एंड एनपीओ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. ठीक है, सो डोंट मिस द लेक्चर्स. गलती से भी लेक्चर्स बंक मत करना. whatever concepts I will be teaching, they are lifelong. ठीक है, so on this note I will end today's lecture. Thank you.